Hi guys, now I am going to teach you the very interesting chapters to you all, that is the political parties. You all have listened the name of the political parties. So what is the political parties? Are you know what is the political parties? So listen, the definition of the political party is very easy. You can define yourself. Political party is a group of people who contest election, form the government and run the country. There are three components of the political party. Leader, you can say that the leader, active member and the follower. ये थ्री कंपोनेंट्स होते हैं. अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल में ये तीन मेंबर्स हो जाए, लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर, तो लीडर मतलब हु लीड्स द पॉलिटिकल पार्टी. ए पर्सन हु हैज कैपेसिटी टू टेक द डिसीजन इज नोन एज लीडर. ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्विक डिसीजन लेने की या अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लीडर कहते हैं. इट इज ए मस्ट इन द पॉलिटिकल पार्टी. दैट्स व्हाई इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. Now the second is the active member. Active member, the person who collect the money from any way to the growth of the political party. अगर कोई व्यक्ति पार्टी के विकास के लिए कहीं से भी पैसा इकट्ठा करता है या एडवर्टीजमेंट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव मेंबर कहते हैं. वो क्या है? वो एक्टिव मेंबर होता है. You can see the definition and the component of the political party. A political party is a group of people. That's I have written here. I have told you. तो द कंपोनेंट्स में हो गए आपके लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर, और तीसरे ये फॉलोअर हो गए. ठीक है. और फॉलोअर्स क्या होते हैं? फॉलोअर्स होते हैं द कैंडिडेट्स हु आर वोटर एज वेल एज दे आर नॉट वोटर आल्सो. वोटर भी हो सकते हैं, नॉन वोटर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो according to universal adult consent, if they have not completed the age of 18 years, they cannot give their valuable votes. That's why in the follower most of the people can be voters. ठीक है. Now what is the function of the political party? क्या काम है political party से? Partisan, ये देखिए क्या होता है. A person who, a partisan क्या होता है? This is a very important terminology to you. A person who is strongly committed to a party, किसी पार्टी के लिए strongly committed है, और पर्सन या ग्रुप ऑफ ए फैक्शन. पार्टिसनशिप जो मार्क बाय ए टेंडेंसी टू टेक ए साइड एंड द इनएबिलिटी टू टेक द बैलेंस व्यू एंड ऑन एन इशू, इसे पार्टिसन कहते हैं हम लोग. नाउ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस होते हैं. पहला, टू कंटेस्ट द इलेक्शन. कंटेस्ट द इलेक्शन मीन्स इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री it is very important to have a political party. In the absence of the political party, who will be stand in the election, who will be fight in the election, and how government will be made? That's why political party is very important for contesting the election. You can you imagine a election without political party? कल्पना नहीं कर सकते हैं. और दूसरा क्या है कि parties put forward the different policies and the program. Parties put forward the different policies and the program after winning the election, and before winning the election they announce in front of the public their policies and the program. After winning the election, after making the government, what will we do for the welfare of the people? वो क्या करेंगे? उस पॉलिसी और प्रोग्राम के माध्यम से पीपल्स को क्या करेंगे? तीसरा फंक्शन होता है पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग द लॉ फॉर ए कंट्री. ठीक है. वो लॉ बनाते हैं. जो प्रीवियस लॉ है, जो पहले से लॉ बने हुए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन लॉ में कुछ कमियां भी होती हैं या टाइम टू टाइम कुछ नए लॉ की जरूरत भी होती है. और आफ्टर विनिंग द इलेक्शन इफ दे हैव टू मेक द गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट बना लिए हैं, रूलिंग पार्टी बन गए हैं, तो वो उसके लिए लॉ बनाते हैं कि क्या उसमें अच्छा है, क्या खराब है. चौथा फंक्शन इसका होता है पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. ये पहला फंक्शन होना चाहिए. आफ्टर विनिंग द इलेक्शन इफ दे हैव शोइंग देयर मेजॉरिटी इन द लोक सभा, either the legislative assemblies, and if they are showing their majority in the Lok Sabha, they will be become the PM. If they are showing the majority in the legislative assembly, they will be become the
चीफ मिनिस्टर, तो वो क्या बनाएंगे, सरकार बना लेते हैं ना, और गवर्नमेंट चलाते हैं। और फिफ्थ जो इसका फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है रोल ऑफ अपोजिशन। अगर किसी कंट्री में केवल एक पार्टी रहेगी, रूलिंग पार्टी रहेगी, और कोई उसका अपोजिशन नहीं रहेगा, तो ऐसे में रूलिंग पार्टी अपने मनमाना काम करेगी। तो रोल ऑफ अपोजिशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। इफ पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी इज मेकिंग ए लॉ that is not uniform for all the caste, religion and group, किसी के सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं है, तो अपोजिशन पार्टी विल बी अपोज इन द पार्लियामेंट, उसका पार्लियामेंट में अपोज करेगी। दैट्स वाई अपोजिशन पार्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और नेक्स्ट है सेव द पब्लिक ओपिनियन। से पार्टी सेव द पब्लिक ओपिनियन बिफोर द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन। दे हैव मूव इन द पीपल्स ग्रुप, पीपल लोगों में टहलती रहती हैं, और पीपल रेज देयर डिमांड्स, पीपल्स अपनी जब डिमांड्स उठाते हैं, तो आवर लोकल लीडर्स पुट फॉरवर्ड दैट डिमांड टू द सीएम और द पीएम, वहां तक पहुंचाते हैं, जिससे इनके वेलफेयर की स्कीम आती है। जैसे कहीं रोड टूट गया तो कोई सीधे पीएम से कंप्लेन नहीं करेगा, वहां का जो लोकल लीडर होगा या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होगा, एक्टिव मेंबर होगा, लीडर होगा, फॉलोअर होगा, ऐसे कंडीशंस में पब्लिक द सेक ओपिनियन, तो उससे सरकार को यह भी पता चलता है कि सरकार की ड्रॉबैक्स क्या है, अगले इलेक्शन में उसको किस पॉइंट पर इलेक्शन लड़ना है, कौन से मुद्दे होना चाहिए, उसको भी ठीक करेगा। और पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, ये भी काम करती है। प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, जो सरकारी तंत्र है, मतलब आईएएस पीसीएस से लेकर के इधर प्यून्स तक, इसको देखना और ये करना कि वेलफेयर स्कीम को देखना कि कौन इससे बेनिफिटेड हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, कहाँ करप्शंस है, कहाँ करप्शंस नहीं है। कभी कभी आप सुनते होंगे विधायक जी ने या ये सस्पेंड हो गया, वो सस्पेंड हो गया, इस तरह से जो रूल है ये पूरा पॉलिटिकल पार्टीज को करती है। आगे है कि हाउ मेनी पार्टीज शुड हैव। If we see the according to the definition of the political party, so we can say that there is a lot of political party because only there is a three component, that is leader, active member and follower ना, but it is a not necessary, ये necessary नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है कि according to the NCERT of the class 1 there are 750 plus political parties, 750 से ज़्यादा political parties हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कैसे, दो तरह की होती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर में अगर वो मेंशन्ड होती हैं तो दो तरीके से मेंशन्ड होती हैं, आइदर दे विल बी मेंशन्ड इन द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और दे विल बी मेंशन्ड इन द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी और द क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेशनल पार्टीज, ये देखिए पार्टीज, द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन द डिटेल द क्राइटेरिया द प्रोपोर्शन ऑफ द वोट एंड द सीट द पार्टी मस्ट गिव इन ऑर्डर टू द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। क्या है, पहला तो दिया हुआ है कि स्टेट पार्टी किसको कहते हैं, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट, 6% ऑफ द टोटल वोट, 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, एक किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट पा जाए एंड विन एटलीस्ट 2 सीट, 2 सीट जीत जाए, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाती है स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ ए स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो इलेक्शन में 6% वैलिड वोट पाती है और 2 सीट जीत जाती है, तब उसको हम लोग क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसकी डिफिनीशन थोड़ा क्रिटिकल है, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6%, ये तो सेम रहेगा, एटलीस्ट 6% वोट ऑफ द टोटल वोट इन द लोकसभा, यहाँ पे क्या है, लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन और आइदर प्लस दूसरा भी है लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन द 4 स्टेट।
अगर ये असेंबली इलेक्शन थे तो कितने स्टेट में होना चाहिए, एटलीस्ट 4 स्टेट में होना चाहिए, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट की जगह पे कितने सीट होना चाहिए, 4 सीट होनी चाहिए। तो a party that secure at least 6% vote in the Lok Sabha election or the assembly election in the 4 states, or the assembly election in the 4 states and win at least the 4 seat is known as the नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो उनको क्या कहा जाता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। These are the some national political party. Now at this time there is a 8 national political party. You can say AAP, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक, ये स्टेट पार्टीज हो गई। ये स्टेट्स हैं कि किधर नॉर्दर्न एरिया में, ईस्टर्न एरिया में कहाँ पे ये सिचुएटेड हैं। नाउ चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस क्या है? ए लॉन्ग क्वेश्चन हैज बीन अराइज फ्रॉम दिस टॉपिक। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के वेरियस चैलेंजेस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी? तो पहला है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मीन्स, पहला चैलेंज है, मीन्स देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी। You will be see, you can see the person who become the MLA in the previous election, he will be also become the MLA in the next election also. If there is a democracy, all the members of the political party get the chance to become the MLA, MP or the PM, CM. अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी मीन्स इक्वलिटी। तो उसमें निरहू हरिजन से लेकर के खेत जोतने वाले किसान से लेकर के टॉप के IAS ऑफिसर के जो रिटायर्ड हैं उनसे या उनके तक सबको चांस मिलना चाहिए। लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसमें क्या है कि जो है जो पहले था वही अपना ग्राउंड बनाते चला जाता है। पहली कमी। दूसरी कमी इसी से रिलेटेड है, उसको हम लोग कहते हैं सेकंड चैलेंज इज द डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स भाई भतीजावाद। द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी गिव द टिकट टू देयर नियरेस्ट क्लोज रिलेशनशिप्स। वो अपने टिकट्स जो होती हैं पहले उन्हीं को देती हैं। द कैंडिडेट्स हु कैन विन द इलेक्शन, हु है मच मोर मनी, हु इज मच मोर पावरफुल इन द एरिया, उनको देते हैं। मतलब उसके बाद फिर सामान्य आदमी को टिकट मिलता है। और चूंकि सीटें जो है वो लिमिटेड होती है, लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीट लिमिटेड होती है, इसलिए जो सामान्य आदमी है, जनरल सिटीजन है, उनको टिकट्स नहीं मिल पाता है। तो दिस इज ए एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम इज मनी एंड मसल्स पावर्स। you often you can see nowadays in the elections there is a money and muscles power in the election। तो जिसके पास जितना पैसा होता है वो वोट खरीद लेता है या फिर बूथ कैप्चरिंग कर लेता है, इस तरह से ये। और चौथी जो प्रॉब्लम है वो मीनिंगफुल चॉइस ऑफ द वोटर है। ये वोटर की है कि सम टाइम वोटर कैन नॉट चूज देयर लीडर्स। इफ वोटर इज इलिटरेट दे डू नॉट नो एनी थिंग्स अबाउट द लीडर, तो दे विल बी अनअवेयर, वो अनअवेयर रहेंगे अपने लीडर्स के बारे में। तो ऐसी कंडीशन में वो किसी को भी वोट दे देते हैं। तो ये 4 कंडीशंस हैं। दीज आर द 4 ड्रॉबैक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। 4 कमियां हैं। अब इनको हाउ पार्टीज कैन बी रिमूव्ड, कैसे इनको दूर किया जाएगा। हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, हाउ टू पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड 4 तरीके से। पहला जो होता है वो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला जो होता है, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन उठता है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब कि एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी MP एंड MLA कैन नॉट बी चेंज देयर सीट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो वन कैन चेंज बी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। और दूसरा जो होता है, दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये दूसरा बाय द सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा लॉ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टू फाइल एफिडेविट ऑफ होल द डिटेल ऑफ द पर्टिकुलर लीडर्स। उस लीडर के पूरे डिटेल्स को, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के, उसकी प्रॉपर्टी से लेकर के, इवन वो मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ कैसी लाइफ है, ये पूरे डिटेल्स को देना पड़ता है इलेक्शंस कमीशंस को। यद्यपि ये इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है, इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बट इट इज आल्सो एरेना, एक एरिया में घेर देता है पॉलिटिकल लीडर्स को कि ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड या इस तरह का कोई रिकॉर्ड रहेगा तो हमको लिख करके
देना पड़ेगा दूसरा। और तीसरा जो होता है, इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर टू मेकिंग ए नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ये जो आपका इंटरनल डेमोक्रेसी थी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, उसके लिए ने कहा कि इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होना चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति को चांस मिले कि वो भी लीडर्स बन सके, वो भी रिप्रेजेंटेटिव बन सके। और दूसरी बात सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरें। ये इलेक्शन कमीशन का था। और नाउ ये लॉ शुड बी रेगुलेट टू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, शुड मेड कंपलसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन इट्स मेंबर्स रजिस्टर। एक और लॉ कमीशन इसने दिया कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि दे विल बी मेक ए रजिस्टर एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द पीपल्स, राइट डाउन द नेम ऑफ द पीपल्स इन दैट रजिस्टर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, ठीक है, उसमें लिखा। और अगला है, इट शुड बी मेड ए मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू गिव द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट, ठीक है। अगला जो है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अनिवार्य है कि दे विल बी गिव द 1/3 सीट टू द वुमेन्स इन ईच एंड एवरी इलेक्शन, हर इलेक्शन में। एंड देयर शुड बी स्टेट फंड इन इलेक्शन। इसके बाद लास्ट जो दिया उसने दिया एक इलेक्शन कमीशन दिया स्टेट लेवल पे कि ये जो है मनी एंड पर्सनल पावर्स का यूज ना करें, इसलिए इलेक्शन कमीशन विल बी प्रोवाइड सम मनी फॉर स्टैंडिंग इन द इलेक्शन, उसके लिए कुछ मनी देगा। दीज आर द पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिफॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। Thanks guys, this chapter has been ended.